Hello students, welcome back to the next video of Managerial Economics Part 2, that is Macroeconomics for you SYBMS students. So I welcome you to Online Shine app and Professor Rahul Mukherjee's session and video. So we are on to the second module of your syllabus and chapter number 1, which is demand for money and supply of money. So this particular module, let me tell you first what it will consist of. Demand for money and supply of money is your first chapter, which will consist of certain elements, or you can say answers like velocity of circulation of money in our economy. After that, it will also consist of certain topics like Cambridge principle, Fisher's equation. Then इसमें next chapter जो होगा that will be on inflation, and the last chapter will be on monetary policy. Yes, that is of central bank. हमारे कंट्री में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. So these three topics we are going to do in this module. So starting with the first chapter in this particular video for you all. So the first chapter talks about demand for money and supply of money. Let me first talk about demand for money, क्योंकि पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके बाद पैसे सप्लाई किए जाते हैं या प्रिंट किए जाते हैं या उसके रेगुलेशंस के हिसाब से पॉलिसीज फ्रेम होते हैं एंड देन अप्लाई होते हैं. फिर मार्केट में पैसा आता है या इंडस्ट्रीज कंपनीज को पैसा मिलता है, हमारे लिए रोजगार एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट हैपेंस इनिशियली. सो व्हाई डू वी डिमांड मनी? कॉमन पीपल पैसा क्यों डिमांड करता है? मेनली टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दैट इज परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, द फर्स्ट थिंग. सो दिस कम्स टू ट्रांजैक्शन मोटिव. इसके चलते मैं आपका एक आंसर भी रेडी करवा देता हूँ कि देयर आर 3 अप्रोचेस टू डिमांड फॉर मनी. वन इज क्लासिकल अप्रोच. क्लासिकल अप्रोच जो आपको स्लाइड्स में भी दिखेगा, while I explain, go through the PPT also, the slides which I am sharing here. Classical approach talks about कि we people demand money for basic requirement, that is transaction, to purchase goods and services etc. Second comes out with new classical approach which talks about transaction motive तो है ही हमारा, plus precautionary motive है. We take precautions and save money for future. And the third is Keynes approach to demand for money, that is having speculations. We have got more or extra money, we try to speculate, invest it and get higher returns from it. So this is how, and these are the main reasons why do we demand money. Okay, so the first 2 theories were mainly given by Alfred Marshall and A.C. Pigou, J.S. Mill, and the last one was given by Keynes. So here my PPT will help you out to understand. The slides will give you an idea theoretically and with proper statements why do we demand money. इसके अलावा आप सोचिए या कि आर देयर एनी अदर नीड्स और रीजंस फॉर विच वी डिमांड मनी. एक तो हमारा डेली की खरीदारी हो गई, दूसरा वी टेंड टू सेव मनी. जैसे ये कोरोना पैंडेमिक हम सबने देखा तो हम सबके ऑलमोस्ट सेविंग्स यूज हुए हैं, बिकॉज द वर्ल्ड, द कंट्री हैड कम टू स्टैंड स्टिल. देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर सर्टेन टाइम बिंग और सर्टेन पीरियड, एंड देयरफॉर हमारे सेविंग्स काम है. तो हम शायद सही करते हैं कि वी सेव ऑन मनी. एंड द थर्ड वन इज स्पेक्यूलेशन, कि कहीं पे हमारा एग्जिस्टिंग इनकम हम लगा के उससे दुगना तिगुना बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा कमाते हैं. कीपिंग इन बैंक्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और सर्टेन अदर इंडस्ट्रीज और गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक्सेट्रा. सो दिस इज हाउ डिमांड फॉर मनी अराइजेज इन एनी इकोनॉमी. टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ मनी, इट्स मेनली डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री, डिपेंडिंग ऑन वो क्या सिनेरियो देखते हैं. कि अगर मार्केट में मनी फ्लो कम है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू व्हाट दे डू, दे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट सो दैट पीपल कैन टेक लोन एंड परचेस एक्सेट्रा एंड मनी फ्लो बढ़ जाए. ये हम मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ दिस मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे. बट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी in an economy is a question, important question for in your syllabus for this particular subject and module and chapter as well. So let's talk about velocity of circulation of money. Velocity का मतलब क्या होता है? speed at which money is changing hands in the economy. एक जन से दूसरे जन के पास गया, मैंने जाके मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वालों ने, दैट इज MSCB या टाटा पावर वगैरह ने अपने एम्प्लॉयज को पैसा दिया, सैलरी दिया. वो सैलरी से उन्होंने अपने बच्चों का फीस भरा या जाके अपना राशन पानी का खर्चा भर दिया. वहां से वो पैसा वापस इंडस्ट्रीज में गया कोई ना कोई चैनल से. सो दिस इज
at what speed money is changing hands in the economy. और ये मायने रखता है क्योंकि लॉकडाउन में सभी ने अपना सेविंग्स अपने पास जमा के रखा डर के वजह से, और मार्केट में लिक्विडिटी दैट इज मनी फ्लो कम हो गया, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए, इंडस्ट्रीज थोड़ी ठप पड़ गई, जिसके वजह से जॉब्स नहीं थे मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, और पूरा इकोनॉमी कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं वो पूरा हिल गया या रुक थम सा गया. सो सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आस्क मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इकोनॉमी, तो जैसा लास्ट मॉड्यूल में हमने बिजनेस साइकिल में पढ़ा कि डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ पीपल दैट इज 130 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा कंट्री होल्ड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कंजम्पशन और डिमांड इनके तरफ से आता है तो ही प्रोडक्शन शुरू हो जाता है कंपनीज में, और जब वहां पे प्रोडक्शन शुरू होगा तो लोगों को जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगा, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी एंड सो ऑन, सो मेनी फैक्टर्स. इसके अलावा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे शेयर किया कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं. सो दे आर ईएमआईज के तौर पे अगर कुछ भरना पड़े, वन शॉट पेमेंट हो जाए, हैबिट्स ऑफ पेमेंट है तो कैश पेमेंट में वेलोसिटी गोज फास्टर, इनकम अगर लोगों का बढ़ता है, परचेसेस बढ़ता है, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ता है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बिकम्स फास्टर, अदरवाइज वाइज वर्सा स्लो हो जाता है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अगर लोग अपने पास पैसा जमा करके रख देते अपने घरों के लॉकर में या बैंक्स में, तो व्हाट हैपेंस इज मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी फ्लो गोज डाउन. सो दिस आर द थिंग्स, the factors which I have shared here: consumption pattern, demand in the economy, interest rates etc., EMI rates, habits of people, preferences, priorities. अगर ये सब उसकी तरफ इशारा करते कि लोग दो पैसा निकाल के खर्चा करना चाहते हैं, then automatically the velocity of circulation of money goes up, otherwise it goes down. So mainly my motto in explaining this particular chapter was this: supply of money RBI करती है, all other countries में central bank of a particular country, finance minister, RBI governor, also till certain extent the mint house जहाँ पे करेंसी प्रिंट होता है और हर एक नोट का हिसाब किताब रखा जाता है, हर एक नोट पे गवर्नर का साइन होता है, तो उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी का, मनी प्रिंट होता है और डाला जाता है. मनी प्रिंटिंग इज डन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री. जितना सोने का वैल्यू है उसके हिसाब से नोट प्रिंटिंग होगा. अगर उससे ज्यादा कम हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो जीडीपी दैट इज प्रोडक्शन को मैचअप करना पड़ेगा वो लेवल्स. अगर नहीं कर पाए तो हमारे नोट का वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा, गिर जाएगा, रुपीज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड लेवल दैट इज डॉलर. सो ये सारे छोटे छोटे चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हैविंग सेड दैट, व्हेन आई टॉक अबाउट मिंट हाउस, करेंसी प्रिंटिंग, गवर्नर का साइन होता है, हर एक नोट पे ऑथराइजेशन होता है, ऑल दिस इज डन टेकिंग इन पार्ट और taking in consideration the demand patterns. So if the demand pattern has to be improved, supply of money has to be there. But yes, notes unlimitedly छापते रहे तो हमारा करेंसी depreciate हो जाएगा, तो ध्यान में रखते हुए notes print किए जाते हैं. Apart from all these factors, always remember I am making you revise जो हमने अब तक पढ़ा ये चैप्टर में. 3 approaches to demand for money: classical, neoclassical and the third one is Keynes modern approach. एंड सप्लाई ऑफ मनी में आपको याद रखना है कि सेंट्रल बैंक के थ्रू सप्लाई होता है. बट वन लास्ट थिंग, कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी है जो मेरे स्लाइड में, और कुछ मॉडर्न अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर आप अपने फोर फादर्स या पेरेंट्स से भी पूछोगे रफ आइडिया, वो बोलेंगे हमारे जमाने में हार्डली एक बैंक अकाउंट होता था, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी, और हम कैश ट्रांजैक्शन करते थे. आज और एनईएफटी थोड़ा बहुत पेस ले रहा था, बट आज के जमाने में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, आरटीजीएस एंड सो ऑन, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स डेवलप हो गए कि थिंग्स हैव बिकम फास्टर. द डिमांड फॉर मनी तो है ही, बट सप्लाई ऑफ मनी हैज बिकम फास्टर बिकॉज ऑफ विच ट्रांजैक्शंस मूव फास्टर, बिकॉज ऑफ विच जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मिलता है. और जब जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मिलता है दोस्तों, तो वहां पे आपके लिए भी जॉब्स आती है फॉर ऑल यू डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज प्रोडक्शन होगा तो आमदनी होगी, कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा बढ़ेगा एंड ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. So that's it from my end. Refer my PPT, solve the MCQs of this particular chapter, and at the end, when I share case studies, also go through them because they will open up your mind practically, जैसा मैंने आपको अभी सिखाया. Okay, so stay tuned to Online Shine app to watch such informative videos from our side in crisp and short videos and content specifically for you students who are subscribing Online Shine app and its subjects. So see you all in the next video. That is module 2.
and chapter number 2, which is on inflation, mehengai. Till then, stay tuned to this particular app, that is Online Shine. Take care of yourself and prepare well.